Good morning, all of you. Welcome to online classes of Maharana Pratap International School, Sagwara. My name is Mahesh Purohit and will be taking mathematics classes regularly. I am gold medalist from MSc Mathematics and gold medal awarded by ISRO Chairman Padma Shri A.S. Kiran Kumar sir. So let's move on to our topic, linear equation. Student, what is linear equation? Now, linear equation is a algebraic expression. Its degree is 1. If every equation its degree is 1, then it is called linear equation. Example है 3x plus 2, where x is a variable and 3 and 2 are real number. Now 3x plus 2 is equals to 0. It is a linear equation of one variable. 3x plus 2 equals to 0 is linear equation of one variable. ठीक है, अपने सिलेबस में जो कंटेंट है वो है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, इफ लिनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इज 3x plus 2, देन लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसका जो एग्जांपल रहेगा 3x plus 2y plus 5 is equals to 0. Now it is called it is called linear equation in two variable, where x and y are variable and 3, 2, 5 are real number. And our topic is pair of linear equation in two variable. Now then, if it is equation 1, then is equation 2. Now it is called pair of linear equation in two variable. Both are in two variable, 3x plus 2y, 2x plus 9y plus 5 plus 7 is equals to 0. Okay, please write down. Now next है जनरल फॉर्म ऑफ linear equation. General form of linear equation. Now general form of linear equation is ax plus by plus c is equals to 0, where a, b and c are real number and x, y are variable. ओके, एक चीज का ध्यान रखना, a is not equals to 0 and b is also
not equals to 0. Why? If a and b both are equals to 0, then our variable x and y is also equals to 0. यदि हम a को 0 लेंगे, देखते हैं, जैसे कि 0 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ y प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ is equals to 0 is equals to 0, then क्या बचेगा, c equals to 0. Then our both variable x and y both are 0, so it is not a linear equation. ठीक है, then a is not equals to 0 and b is not equals to 0. Write down that one thing. देखिए एग्जांपल है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. व्हाट? 3x plus 2 equals to 0, 4x plus 7 is equals to 0, 5x plus 9 is equals to 0. All are linear equation of one variable. And 2x plus 5y plus 9 is equals to 0, या 3x plus 6y plus 7 is equals to 0. Both are example of linear equation in two variable, x and y both are variable. Okay. नेक्स्ट है मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ linear equation in two variables. ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसमें दो मेथड है. फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड है algebraic method. Graphical method and algebraic method. ओके, अपन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से. आप हेडिंग डालिए ग्राफिकल मेथड. हेडिंग डालिए ग्राफिकल मेथड.
First type of graphical method. If we have two linear equation, यदि हमारे पास कोई भी दो linear equation रहेगी, ठीक है, मैं लिखता हूँ दोनों linear equation को लिखता हूँ. If we have two linear equation, pair of two linear equation, 2x plus 3y plus 4 is equals to 0, and next है 3x plus 4y plus 5 is equals to 0. This is pair of linear equation. ठीक है. Now it is equation 1 and equation 2. Okay. Now we know that general form of linear equation is what? Ax plus by plus c is equals to 0. Now general form of equation 1 is what? So a1x plus b1y plus c1, and equation 2, general equation of equation 2 is what? a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Both are general form of linear equation. Okay. Now type 1 is what? If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, where a1 is what? So a1 is 2, a2 is 3, sorry, a1 is 2, b1 is 3, and c1 is equals to 4, and a2 is equals to what? 3, b2 is equals to what? 4, and c2 is equals to what? 5. Okay. Now put the value of a1 and a2 in type first. a1 is what? 2 by 3 is equals to 3 by 4. जब हमने वैल्यू पुट कर दी a1 and a2 is equals to b1 and b2, a1 a2 equals to b1 b2, there is 2 by 3 and 3 by 4. Both are not equal. Okay. Why? Because 2 by 3 is equals to 3 by 4. तो क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? Not equals to 2 by 3 is not equals to 3 by 4. Then type 1 is what? a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Okay. एक बार ये राइट डाउन करो. Then if जब हमारे पास दो लाइन्स है, line 1 and line 2, and both are not equal to each other. Okay. 2 by 3 is not equals to 3 by 2. Then इस लाइन को जब अपन ड्रॉ करेंगे, अगर ये लाइन यूं कहीं जा रही है, ठीक है, तो दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी? ऐसे जाएगी. या ये लाइन यूं जा रही है तो दूसरी लाइन यूं जाएगी. यानी किसी न किसी एक पॉइंट पर वो क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ओके. किसी न किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. व्हाई? बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल. ओके. एक बार ये राइट डाउन करो. स्टेप क्या है? a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Why? Because both value are different. Okay. और जब वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी और जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? अपनी जो लाइन थी दोनों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन ये लाइन कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर क्रॉस होगी. एंड जब क्रॉस होगी तो ये लाइन क्या करेगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. देन इफ a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, then we get three condition. Condition first,
इंटरसेक्टिंग लाइन, कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, सेकेंड, अगर ये कहीं किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट होगा। जैसे कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट हमें फाइंड आउट होगा। ओके, यानी कि अगर हमें पॉइंट मिल रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। नाउ सेकेंड इज इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, क्या रहेगा? इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। एंड अगर इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, किसका? उन दोनों लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास अवेलेबल थी, मैंने फिलहाल तो मिटा दी है लेकिन आपने राइट डाउन की है, उन दोनों इक्वेशन को जब अपन ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो वो किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी, और जब वो इंटरसेक्ट करेगी तो उनका एक सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। और अगर उसका वो सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, तो वो दोनों लाइनें क्या रहेगी? कंसिस्टेंस रहेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा? कंसिस्टेंट इक्वेशन। द इक्वेशन इज व्हाट? कंसिस्टेंट। क्या रहेगी? कंसिस्टेंट रहेगी। ये राइट डाउन कर लो। सेकेंड कंडीशन जो है ग्राफिकल मेथड की, उस पर पढ़ते हैं अपन। टाइप हो गया कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, हाँ, फर्स्ट अपन ने लिया था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। इक्वल टू है या नहीं है वो तो हम अपन को बाद में पता चला जब अपन ने दोनों की वैल्यू पुट की, A1 एंड A2, B1 एंड B2। नाउ दिस टाइम अब अगर एक चीज और दे रहे हैं, C1 बाय C2, जो थर्ड कांस्टेंट टर्म जो अवेलेबल रहती है इक्वेशन में, उसे भी लेंगे। लेकिन कब? एक बार मैं इक्वेशन राइट डाउन कर रहा हूँ, उस इक्वेशन में अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो अपन तीसरी स्टेप पे जाएंगे। अगर नॉट इक्वल टू आया तो सेम कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो इक्वेशन अपन लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट स्टेप 4x प्लस 6y प्लस 8 is equals to 0, and we know that now 2 is A1, B1, C1, A2, B2, C2. Now A1 by A2 is equals to B1 by B2। ये कंडीशन अपन ने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो फाइंड पुट द वैल्यू ऑफ A1 and A2। तो 2 by 4 is equals to 3 by 6। 2 1 2, 2 2 4, यानी कि इज इक्वल टू 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 2। बोथ आर इक्वल, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। देन अपन एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अपन देखते हैं कि क्या ये भी इसके इक्वल टू रहेगा या नहीं रहेगा। नाउ देन इज इक्वल टू C1 by C2 इज इक्वल टू 4 by 8। तो 4 1 का 4 2 का 8 is equals to 1 by 2। Now it is also equals to both। Okay, hence A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2। इस कंडीशन में क्या रहेगा? जब अपन इस लाइन को किसी ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, कौन सी लाइन है? ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइनों को अपन किसी ग्राफ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर एक लाइन जा रही है सीधी, ठीक है, तीनों इक्वल टू है, तो दूसरी भी कहाँ जाएंगी? उसके ऊपर ही जाएंगी। ठीक है, और अगर सेम कंडीशन में अगर तीसरी वैल्यू पुट करें, वो भी कहाँ जाएगी? उसके ऊपर ही जाएगी। वाई? बिकॉज ऑल आर इक्वल टू। A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 एंड C1 by C2। ठीक है, तीनों इक्वल टू है।
तो एक ही जगह से जाएगी। अगर ऐसे ना जाके ऐसे जा रही है तो भी ये दूसरी भी उसके ऊपर ही जाएगी और तीसरी भी उसके ऊपर ही जाएगी। ओके, तो जब अपन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी तब अपना रिजल्ट था ओनली वन सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट इक्वेशन। ओके, अब ये तो एक दूसरे के ऊपर से होकर ही जा रही है, तो ये तो कहीं जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जैसे कि यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी। ओके, या यहाँ भी करेगी, कहीं पर भी करेगी। ठीक है, देन क्या रहेंगे इसके पॉइंट? बोलो, इसमें जो सॉल्यूशन है वन, ओनली वन सॉल्यूशन था, उसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक बार ये राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसको मिटा के इसके पॉइंट लिख देता हूँ। कंडीशन सेकंड। ओके, या टाइप 2। ठीक है, जब इक्वेशन क्या करेंगे, एक जगह से गुजर रही है, बाय a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, all point are equal। ठीक है, देन देखो जो लाइन रहेगी अपनी वो रहेगी कोइंसिडेंट लाइन रहेगी। ओके, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, एंड जो सॉल्यूशन रहेंगे वो क्या रहेंगे? अभी तो इससे पहले जो था एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट कर रही थी तो क्या था? इट इज ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, लेकिन अब ये एक से ज़्यादा जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तब इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और जब हमें सॉल्यूशन अवेलेबल है तो वो जो इक्वेशन रहेगी वो कौन सी रहेगी? कॉन्सिडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन रहेगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसमें। देन नेक्स्ट है टाइप थर्ड। कंडीशन। ओके, टाइप थर्ड है तो भी या थर्ड कंडीशन पे। देखिए सेकेंड स्टेप अपन वापस उठाने, क्या था? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ओके, अगर ये कंडीशन आ गई वापस तो ये का ये रहेगा। इससे पहली जो कंडीशन अपन ने लिखी थी वो थी a1 upon a2 is equals to b1 upon b2। ये कंडीशन अगर नॉट इक्वल टू ये कंडीशन भी आती है तो भी अपन को पता है कि क्या उसकी टर्म आएगी वो। ठीक है, अपन दो इक्वेशन और लिखते हैं। 3x plus 2y minus 4 is equals to 0 and 6x plus
4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप थोड़ा करके देखिए, एक बार ट्राई तो करो, वैसे मैं भी कर ही रहा हूँ, बताऊंगा ही सही आपको, लेकिन इसको आगे बढ़ाओ। क्या करना है अपन को, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2, ये फाइंड आउट करना है। अगर ये ऐसा ही आ रहा हो तो भी, नहीं आ रहा हो तो भी हमें पता चलेगा। देखिए क्या आएगा, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2। ठीक है, a1 अपन a2 क्या है, 3/6 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू -4 अपन 9। ओके, नाउ 3 1 जा 3 2 जा 6 1/2 इज इक्वल टू 2/4 1/2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, -4 अपन 9। नाउ a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। देन क्या होगा, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, तो ये इन दोनों इक्वेशनों से हमें जो दो लाइनें प्राप्त होगी वो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के समानांतर। पैरेलल यानी अगर एक लाइन ये सीधी जा रही है तो दूसरी लाइन भी उसके समान ही जाएगी। अगर ये ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसे जाएगी, और अगर ये ऐसे दोनों एक दूसरे की पैरेलल जाएगी तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं रहेगा। इट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, तो अपन फर्स्ट तो लिखेंगे, जो लाइन है वो कौन सी लाइन रहेगी, एक कौन सी लाइन आएगी, पैरेलल लाइन आएगी। ठीक है, एंड सेकंड क्या रहेगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। देयर इज नो सॉल्यूशन। हाँ, और इससे पहले जो थी वो इक्वेशन कौन क्या थी, कंसिस्टेंट थी। ठीक है, तो ये क्या कंसिस्टेंट रहेगी, अगर हमें यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेगी या इनकंसिस्टेंट रहेगी। तो इक्वेशन जो है वो क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट। ओके, ठीक है, राइट नंबर। क्यों इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज देयर इज नो सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन क्यों नहीं है, बिकॉज लाइन इज पैरेलल। जब लाइन कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन कहीं भी नहीं मिलेगा, ग्राफ ड्रॉ ही नहीं होगा, और जब ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा तो इक्वेशन क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट है एल्जेब्रिक मेथड, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। ओके, मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट डाउन कीजिएगा।
any 5 example of linear equation of 2 variable। ओके, कोई भी 5 एग्जांपल लेने हैं आपको linear equation of 2 variable। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू एक्स प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है कैसे सॉल्व आउट करोगे। देन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड c1 by c2। अपने पास 3 कंडीशंस हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, या कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। उसके रिगार्डिंग वैल्यू पुट अप होगी, या तो ये कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करेगी, या कंडीशन 2 को करेगी, या कंडीशन 3 को करेगी। देन उसके बाद उन तीनों को सेटिस्फैक्शन जिसको भी सेटिस्फाई करती है तो उनकी क्या टर्म्स रहेगी वो आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट है सिक्स एक्स प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, 7। सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको, या किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों क्वेश्चन दिए हैं, किसी में भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो डाउट बॉक्स में बिल्कुल आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। अपन कल जब इससे आगे बढ़ेंगे तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे। एंड नेक्स्ट जब अपन अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार इसका रिवीजन वापस करेंगे। ओके, थैंक यू।